Assalamu alaikum, dear aspirants. I hope I am audible to you. Let's start our today's lecture. Today we are going to discuss the foreign policy and its determinants and different models of foreign policy decision making. So I'll start from explaining foreign policy. In a simple way, we can say that foreign policy of a state is concerned with the behavior of a state towards other states. Okay? States' relations towards other states. But when it comes to the liberals, they add another element in definition of a foreign policy, that they believe that state relations not only towards other states but towards other international actors too. For example, for realist states, most of the time they remain conscious about their relation with their other states only. Okay, that is something states' first priority. But when it comes to the liberal, they give equal importance to the states and non-state actors, especially international organization, and they include state relation with other international organization, international regimes, part of the state foreign policy. So as far as defining foreign policy, our definition of a foreign policy is concerned, we have a disagreement between realist and liberalist. Now come to the purpose of the foreign policy. States, they form their foreign policy to promote their nation's security, stability and prosperity. Let me repeat, states, they form their foreign policy to promote a nation's security, stability and prosperity. But prosperity, stability and security in the domains of their domestic, regional and global sphere. Let me explain it in a more easy way, so you can understand, because so far this talk is quite bookish. So when it comes to the explaining foreign policy, every society is consist of 3 layers. ठीक है, हर सोसाइटी की 3 मेन लेयर होती हैं जो हर सोसाइटी में होती है. एक को हम कहते हैं उस सोसाइटी की इकोनॉमिक लेयर, दूसरी को हम कहते हैं उस सोसाइटी की सोशल लेयर और तीसरी को कहते हैं उस सोसाइटी की पॉलिटिकल लेयर. जो कोर होता है वो सोसाइटी की इकोनॉमिक लेयर्स होती है. उसके बाद इकोनॉमिक लेयर सोसाइटी की जो सोशल लेयर होती है उसको फॉर्म करती है, और इकोनॉमिक और सोशल लेयर्स मिल के सोसाइटी की जो पॉलिटिकल हायरार्की या पॉलिटिकल लेयर्स होती है उसको फॉर्म करती है. अच्छा, जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे, फॉरेन पॉलिसी मेनली विल टेक अ रियलिस्ट व्यू, ठीक है, which confine foreign policy to state relations only. For realist, they believe के जो state के relations होते हैं with other non-state actors या international organizations, those relations are secondary and they depend upon the state relations with another states. ठीक है, let me give you an example. जैसे in case of FATF is an international regime which basically monitor the money laundering issues. तो अब FATF में पाकिस्तान के जिस स्टेट्स के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे वो स्टेट FATF फोरम पे हमें सपोर्ट करेगी, और जिस स्टेट्स के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे वो स्टेट्स FATF के फोरम के ऊपर हमें सपोर्ट नहीं करेगी. तो जो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं वही जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें वही रिलेशन हमारे रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं.
इस वजह से जो रियलिस्ट हैं वो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के जो रिलेशंस हैं एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न, दे गिव लेस इंपॉर्टेंस टू देम and they give more importance to state relations only. But when it comes to the liberals, they give equal importance to state relation and state to non-state actors relations. We were discussing the purpose of the foreign policy. Before going into the purpose, I was telling you that generally a society consists of three layers: three layers: इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल. इकोनॉमिक लेयर जो सी होती है वो इकोनॉमिक रिलेशंस को डिफाइन करती है, मोड ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन कर रही होती है. सोशल लेयर इट कंसिस्ट ऑफ लैंग्वेज, आइडेंटिटी, कल्चर, एंड पॉलिटिकल लेयर बेसिकली डिफाइंस द गवर्नमेंट हायरार्की. ठीक है, देयर पॉलिटिकल सिस्टम, हाउ इट वर्क्स, देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये सारा उस सोसाइटी की पॉलिटिकल लेयर के अंदर आता है. अच्छा, जब हम पर्पस ऑफ फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो इट एम्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन ऑल दीज थ्री लेयर्स. ऐसे नहीं हो सकता कि फॉरेन पॉलिसी जो सी है उसका जो प्राइमरी पर्पस या एम है वो सिर्फ स्टेट की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना हो. फॉरेन पॉलिसी एम्स to ensure security, stability, prosperity in all these three spheres, and these spheres are economic, political, social. और इसके अलावा when it comes to the unit of analysis, ठीक है, केनेथ वॉल्ट्स ने जो चीज ऐड की थी यूनिट ऑफ एनालिसिस, उसमें फिर आपके पास तीन यूनिट्स मेन बन जाते हैं, जिसमें एक होता है डोमेस्टिक लेवल, फिर होता है रीजनल लेवल, फिर होता है ग्लोबल लेवल. सो फॉरेन पॉलिसी अगर इंटर सोसाइटी एनाटॉमी ऑफ सोसाइटी देखें तो तीन लेयर्स पे काम करती है सोसाइटी के अंदर. वो तीन लेयर्स हैं: इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल. और अगर आप ग्लोबली देखें तो फॉरेन पॉलिसी जिन तीन स्फीयर्स में काम कर रही होती है वो है डोमेस्टिक, रीजनल एंड ग्लोबल. और मोस्ट ऑफ द टाइम डोमेस्टिक और जो रीजनल एस्पेक्ट्स हैं फॉरेन पॉलिसी की ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ग्लोबल जोन सा है स्फीयर है फॉरेन पॉलिसी में, बेसिकली वो आपके डोमेस्टिक और रीजनल रिलेशंस के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है. अच्छा, स्टेजेस इन फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग क्वाइट इंपॉर्टेंट. और जब हम स्टेजेस इन फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग डिस्कस करेंगे, आई वुड लाइक दैट यू शुड नोट डाउन देम, बिकॉज when a question related to foreign policy will come into your exam, okay, whether they are asking foreign policy in general or foreign policy specific to any country, okay, you can analyze it by keeping these stages into your mind. कोई भी क्वेश्चन फॉरेन पॉलिसी भी आप एड्रेस कर सकते हैं अगर आपको फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग की जो स्टेजेस हैं ये क्लियर हैं. उन सफेयर्स के अलावा उन सफेयर्स को भी आपने माइंड में रखना है. तो जो चीजें स्टेजेस जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है, इनमें सबसे पहला है असेसमेंट ऑफ द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. रीडिंग, आप परसीव कैसे कर रहे हैं इंटरनेशनल डोमेस्टिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को, उसको आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे असेस कर रहे हैं. तो ये पहला स्टेप है फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग का, असेसमेंट. सेकंड स्टेप ऑफ फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग इज गोल सेटिंग. अच्छा, दो चीजें हैं, एक है गोल्स, एक है ऑब्जेक्टिव. दे बोथ आर different, they both are separate, okay? They both are not same, goals and objective. Goal primarily is more general, and objectives they are more specific. जब हम goals की बात करते हैं तो मैं आज के लेक्चर में जब मैं नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर डिस्कस करूंगा, तो जो आपके परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनको हम गोल्स कहते हैं. कुछ इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट जो उनसे होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वी कॉल देम गोल.
और कुछ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं जो परमानेंट नहीं होते, नॉन परमानेंट होते हैं, टेम्पररी होते हैं, ठीक है, वी कैन कॉल देम ऑब्जेक्टिव। तो असेसमेंट के बाद जो दूसरा बड़ा मेन स्टेज है फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में, वो है गोल सेटिंग। आपने गोल को सेट करना होता है। गोल रेफर्स टू परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट ऑफ अ स्टेट। और गोल सेटिंग के बाद जो थर्ड स्टेज फॉरेन पॉलिसी के अंदर आती है, उसको हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस, अवेलेबल ऑप्शंस, कि एक स्टेट के पास फॉरेन पॉलिसी के लिए अवेलेबल ऑप्शंस कौन से हैं। रियलिस्ट व्यू पॉइंट, ठीक है, अवेलेबल फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस, दे डिपेंड अपॉन the structure or order of the international system। जैसे इंटरनेशनल सिस्टम होगा, उसका जो ऑर्डर होगा, वैसे ही स्टेट को फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन अवेलेबल होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज इन केस ऑफ यूनिपोलैरिटी, अगर दुनिया का जो सिस्टम है वो यूनिपोलर है, तो स्टेट को एज फार एज देयर फॉरेन पॉलिसी आर कंसर्न्स, हाउ मेनी ऑप्शंस दे कुड बी अवेलेबल? 3। व्हाट आर दोज 3 ऑप्शंस? स्टेट यूनिपोलैरिटी, हमारे पास ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम होता है जिसमें एक सुपर पावर जोन सी हो, वो पूरी सिस्टम को लीड कर रही हो। अगर दुनिया के अंदर सिर्फ एक सुपर पावर है जो पूरे सिस्टम को लीड कर रही है, तो ऐसे सिस्टम को हम यूनिपोलैरिटी कहते हैं, जिसमें एक सुपर पावर हो। तो अब यूनिपोलैरिटी में स्टेट्स के पास फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन क्या होंगे? पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि वो स्टेट अलायंस फॉर्म कर ले यूनिपोल के साथ, जो सुपर पावर है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो स्टेट के पास है वो है अलायंस फॉर्मेशन। सेकंड ऑप्शन स्टेट के पास हो सकता है कि वो यूनिपोल को अपोज करे, उसको बैलेंस करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जिसमें स्टेट यूनिपोल को अपोज कर सकती है, उसको बैलेंस कर सकती है, इसको हम बैलेंसिंग कहते हैं। थर्ड ऑप्शन, अ स्टेट कैन बी रिमेन न्यूट्रल, कि वो ना अलायंस फॉर्मेशन करे ना वो बैलेंसिंग करे, बट इट फॉलोज न्यूट्रल पाथ, इंडिपेंडेंट न्यूट्रल पाथ। अगर वो इंडिपेंडेंट न्यूट्रल पाथ को फॉलो कर रही है तो इसको हम एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी कहेंगे। तो यूनिपोलैरिटी में जो स्टेट्स होंगे उनके पास 3 ऑप्शंस बन जाते हैं, अलायंस फॉर्मेशन, बैलेंसिंग, यूनिपोलैरिटी। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू द बायपोलैरिटी, तो स्टेट्स के पास ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं। स्टेट्स के पास ऑप्शन कैसे ज्यादा हो जाते हैं? क्योंकि दुनिया में 2 सुपर पावर हैं, तो वो अलायंस फॉर्मेशन कर सकती हैं सुपर पावर 1 के साथ भी, सुपर पावर 2 के साथ भी। वो बैलेंसिंग कर सकती हैं सुपर पावर 1 को, सुपर पावर 2 को भी, और वो न्यूट्रल भी रह सकती हैं। तो इन केस ऑफ बायपोलैरिटी स्टेट्स के पास मेनली 5 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और अगर मल्टीपोलैरिटी होगी तो स्टेट्स के पास मोर देन 5, मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द स्टेट्स। तो तीसरी बड़ी चीज जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में आती है वो है अवेलेबल ऑप्शंस, कि स्टेट्स के पास ऑप्शंस क्या हैं, और जो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल जो ऑर्डर होता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट जो स्टेप है वो असेसमेंट है, सेकंड है गोल सेटिंग, एंड आई एक्सप्लेन गोल सेटिंग्स, टेक इट इन ए मोर जनरल वे, एंड थर्ड इज अवेलेबल पॉलिसी ऑप्शंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्मल डिसीजन मेकिंग एक्शंस, प्रोसेस, जिस प्रोसेस से गुजर के डिसीजन मैच्योर होता है। जो फॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इसके लिए हमारे पास 3 to 4 डिफरेंट मॉडल्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज के लेक्चर में उन 3-4 मॉडल्स को भी डिस्कस कर लूं, जिनमें हमारे पास रैशनल एक्टर मॉडल है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग, फॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो कि 4th स्टेज है डिसीजन मेकिंग की, इसके लिए हमारे पास 4 डिफरेंट मॉडल्स हैं और मैं उनको भी डिस्कस करूंगा। लेकिन ये 4 मॉडल जो हम डिस्कस करेंगे ये फॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के मॉडल हैं। और एक और जो स्टेज, जो लास्ट स्टेज है डिसीजन मेकिंग में, उसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्पेशलाइज्ड पीपल होते हैं, बिलोंग फ्रॉम फॉरेन सर्विस, स्टेट डिपार्टमेंट होता है, प्रोफेशनल्स होते हैं, बाय विच डिप्लोमेट्स होते हैं, बाय विच स्टेट इम्प्लीमेंट इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं: असेसमेंट, गोल सेटिंग्स,
policy options, formal decision making process, और last is implementation. अच्छा, 5 these options, ठीक है, states execute to attain 3 different kinds of objective. ठीक है, states execute their foreign policy to achieve 3 different kind of objectives, and they can categorize their objective into 3 categories, and those are short range objective, middle range objective and long range objective. कुछ ऑब्जेक्टिव शॉर्ट रेंज, कुछ मिडिल रेंज, कुछ लॉन्ग रेंज होते हैं. मैं अभी पहले डिस्कस कर रहा था डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. गोल्स वो परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इट कुड बी शॉर्ट रेंज, मिडिल रेंज और लॉन्ग रेंज, जिनको अचीव करना होता है किसी भी स्टेट्स ने. तो अगर ये चीजें डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड किसी भी स्टेट की जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर आप उसको इस पर्सपेक्टिव में देखें, ठीक है, स्टेट्स असेसमेंट टू इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, उस स्टेट्स के गोल्स क्या है, उनके पास उस टाइम में अवेलेबल पॉलिसी ऑप्शंस क्या थे, उनका जो फॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो क्या है, वो कौन से मॉडल को फॉलो करते हैं, रैशनल एक्टर को, ब्यूरोक्रेटिक को, ऑर्गेनाइजेशनल को, इंडिविजुअल को, और जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उनकी पूरी फॉरेन ऑफिस सर्विस है वो कितनी इफेक्टिव है. तो और उसके बाद उनके आप ऑब्जेक्टिव्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लें, शॉर्ट रेंज, मिडिल रेंज, लॉन्ग रेंज. अब आप किसी भी दुनिया में स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं. तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप जहन में रखिएगा. Now come to the determinants of a foreign policy. The things which shape and influence the decision making process. वो कौन सी चीजें हैं जो decision making process को, जो decisions को shape कर रही होती हैं या decision making process को influence कर रही होती हैं. We call them determinants of a foreign policy. Broadly, we can divide those determinants into 2 categories, internal and external. First, have a look on external determinants. सबसे पहला जो एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट है जो स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को शेप कर रहा होता है, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, वो है पावर स्ट्रक्चर. कि वो स्टेट जो सी है वो सुपर पावर है, ग्रेट पावर है, रीजनल पावर है, या एक ऑर्डिनरी स्टेट है. तो जो स्टेट का पावर स्ट्रक्चर होता है वो बहुत मैटर कर रहा होता है फॉरेन पॉलिसी रिलेशन में. और बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफी कंफ्यूजन है जब वो थ्योरी को अप्लाई करते हैं स्टेट्स रिलेशंस के ऊपर. मतलब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर हम यूएस पाक रिलेशन को देख रहे हैं, यूएस पाक रिलेशन में जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी होगी that would be independent, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी होगी that would depends about US stands towards पाकिस्तान. मैं इसको और आसान मिसाल से आपको समझाता हूँ, जैसे मैं क्लास में भी अक्सर एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ. जैसे एक अगर प्रिंसेस है, एक प्रिंसेस ने अगर शादी करनी है, तो प्रिंसेस से शादी करने के लिए हर बंदा तैयार होगा. ठीक है, अगर एक प्रिंसेस से शादी करने के लिए हर बंदा तैयार है, तो प्रिंसेस किससे शादी करेगी ये मैटर करेगा. ये मैटर नहीं करेगा कि प्रिंसेस से कौन शादी करना चाहता है. प्रिंसेस से तो हर कोई चाहेगा कि वो शादी कर ले, लेकिन प्रिंसेस जिसको चूज करेगी वो मैटर करेगा. तो ऐसे ही जब यूएस पाक रिलेशन की बात होगी, तो जब हम रियलिज्म को यूएस पाक रिलेशन पे अप्लाई करेंगे तो रियलिज्म को हम यूएस एंड पे अप्लाई करेंगे, पाकिस्तान एंड पे अप्लाई नहीं करेंगे, यूएस एंड पे. क्योंकि पाक यूएस रिलेशन के जो नेचर होगा उसको यूएस ने सेट करना है, पाकिस्तान ने नहीं सेट करना. यूएस सुपर पावर है, पाकिस्तान जो उनसा है मतलब इट्स अ काइंड ऑफ रीजनल पावर. ठीक है, ग्लोबली इट स्टैंड्स नोवेयर. तो यूएस पाक रिलेशन की नेचर यूएस की पॉलिसी डिफाइन करेगी. रियलिज्म यूएस की पॉलिसी पे अप्लाई होगा, रियलिज्म पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे अप्लाई नहीं होगा. अच्छा, व्हेन इट कम्स टू 2 states which have a equal tier, which share a equal tier, or they stands on equal level, जैसे यूएस और रशिया है. अब यूएस रशिया के अंदर दोनों की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर रियलिज्म अप्लाई होगा, और दोनों की फॉरेन पॉलिसी को हम
एक दूसरे के ऊपर रियलिज्म अप्लाई करके उसको हम एनालाइज करेंगे। और जब पाकिस्तान इंडिया की बात होगी, क्योंकि दे शेयर इक्वल लेवल, तो यहाँ पे दोनों की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर थ्योरीज अप्लाई होंगी, स्पेशली रियलिज्म अप्लाई होगा। लेकिन जब दो स्टेट्स एक जो अपर लेयर है या अपर लेवल है उसके ऊपर स्टैंड करती है और दूसरी लोअर लेवल के ऊपर स्टैंड करती है, तो उसमें जो रिलेशन की नेचर होगी उसको वो स्टेट उसको डिटरमिन करेगी या शेप करेगी जो कि अपर लेवल के ऊपर स्टैंड करती है। और जैसे मैंने आपको वो प्रिंसेस वाली एग्जांपल देके समझाया। अच्छा, अगर एक प्रिंसेस और प्रिंस की शादी होनी है तो उसमें दोनों की कॉन्सेंट मैटर करेगी, प्रिंसेस की भी और प्रिंस की भी, क्योंकि वो दोनों रॉयल बैकग्राउंड से हैं। लेकिन जब आप प्रिंसेस और ऑर्डिनरी पब्लिक की रिलेशन पे बात करोगे तो उसमें प्रिंसेस की जो विल है या उसकी जो मर्जी है वो ज्यादा मैटर करेगी, पब्लिक की उसमें विल या मर्जी मैटर नहीं कर रही होती। तो इसी तरह फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी जो स्टेट के पास पावर है, उसका पावर स्ट्रक्चर है, उसकी पावर पोजीशन है, बहुत मैटर कर रही होती है। दूसरी चीज जो मैटर कर रही होती है वो स्टेट की ज्योग्राफिकल लोकेशन है। फिर वो देखना पड़ता है कि वो स्टेट जोन सी है वो किस किस अलायंसेस के अंदर इन्वॉल्व है, किस किस अलायंसेस का हिस्सा है, और इसमें जो स्टेट के रिलेशन है विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो भी मैटर कर रहे होते हैं। एज सच फ्रॉम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव तो मैटर नहीं कर रहे होते, लेकिन फ्रॉम लिबरल पर्सपेक्टिव स्टेट के रिलेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे आल्सो मैटर्स। अच्छा, इंटरनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इसमें सबसे पहले हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है एक स्टेट का, ठीक है, हाउ स्ट्रांग देयर आइडेंटिटी इज, उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ जाएगी, मिलिट्री पावर आ जाएगी, पॉपुलेशन, गवर्नेंस, तो रोल ऑफ मीडिया, थिंक टैंक्स, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इंटरनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी में आ जाएंगी। अच्छा, अब कम टू द फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारे पास जो सबसे पहले चीज आ जाती है जिसमें हमने जब हम फॉरेन पॉलिसी को कंपेयर कर रहे हो दो स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी को विज विज ईच अदर, तो इसमें जो सबसे पहली चीज देखी जाती है कि उसमें उस स्टेट की जो की जो पावर है वो मैटर कर रही होती है। उस पावर के अंदर उस स्टेट का साइज, वेल्थ, गवर्नमेंट, ये सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं। कि अगर आपने किसी स्टेट्स के साथ फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिश करनी है तो आप देखेंगे कि उस स्टेट्स के पास उसका साइज कितना है, उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, वेल्थ कितनी है, वहाँ का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, क्या वो वहाँ पे यूनिपार्टी सिस्टम है जैसे चाइना में है, या वहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जैसे यूके में है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है जैसे यूएस में है। तो वहाँ के जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये भी मैटर कर रहा होता है। तो कुछ चीजें जो कि स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी फार्मूलेशन में टुवर्ड्स अनदर स्टेट्स सबसे पहले देखती है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीजें देखेंगी उसमें आ जाता है स्टेट्स की पॉपुलेशन, उनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, देयर स्किल्स, वेदर दे आर कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जैसे सऊदी पाक रिलेशन है तो दे नीड लेबर, वो उन रिलेशन स्टेट्स के साथ जहां से वो लेबर इंपोर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे कि उनके साथ कैसा रिलेशन रखना है। और उसके बाद जो चीज आ जाती है वो स्टेट का पॉलिटिकल कल्चर एंड हिस्ट्री एंड रिलीजन है। ऑब्वियसली जैसे हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है मुस्लिम ब्रदरहुड का या पैन इस्लामिज्म के सारी दुनिया के इस्लामी ममालिक को एक हो जाना चाहिए। तो ये चीजें और कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, जो जैसे कुछ कंट्रीज हैं वो सोशलिस्ट हैं तो सोशलिस्ट के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, जो कैपिटलिस्ट है उनके कैपिटलिस्ट के साथ अच्छे होंगे, मुस्लिम्स के साथ अच्छे हो जाएंगे। ये एक तीसरा फैक्टर है जो कि फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के अंदर मैटर कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था जो फॉरेन पॉलिसी फॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो
उसमें जो फॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, हमारे पास 3-4 मॉडल हैं जिनको मैं डिस्क्राइब करूंगा। उनमें सबसे पहला जो मॉडल है उसको हम कहते हैं रैशनल एक्टर मॉडल। रैशनल एक्टर मॉडल बेसिकली इसमें स्टेट जोन सी होती है, वो अवेलेबल जो पॉलिसी ऑप्शंस होते हैं उनके कॉस्ट एंड बेनिफिट को वी करती है कि they try to go for a policy option which cost them lowest and provide them highest benefit. तो हमेशा स्टेट्स कोशिश करती है कि वो फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन में उस ऑप्शन को चुने, उस ऑप्शन के पास जाए जो कि कॉस्ट में लोएस्ट हो और बेनिफिट में हाईएस्ट हो। इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग है, जो कॉस्ट बेनिफिट के ऊपर हम कॉस्ट बेनिफिट पर्सपेक्टिव में हम एनालाइज कर रहे होते हैं, इसको हम कह रहे होते हैं रैशनल एक्टर मॉडल या रैशनल एक्टर मॉडल या रैशनल डिसीजन मेकिंग। अच्छा, व्हाट्स रॉन्ग विद द रैशनल डिसीजन मेकिंग? when it comes to the decision making, there are decisions which are politically good but they are economically bad. But they are, on the other side, we have decisions which are economically good and politically bad. जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज विड्रॉ करती है, किसी चीज से सब्सिडीज विड्रॉ करती है, तो सब्सिडीज को विड्रॉ करना इकोनॉमिकली एक अच्छा डिसीजन होगा, लेकिन ये पॉलिटिकली मतलब इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। या अगर हम गवर्नमेंट सब्सिडीज ज्यादा कर देती है तो पॉलिटिकली लोग बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज को सब्सिडाइज कर रही है, लेकिन ज्यादा सब्सिडाइज करने से आपको उसको इकोनॉमिक जो कॉस्ट है वो बियर करना पड़ेगी। तो जो रैशनल एक्टर मॉडल के साथ इश्यू है कि कुछ चीजों की पॉलिटिकल कॉस्ट ज्यादा होती है, कुछ की इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा होती है, और जब आपने ये देखना है कि आपको लोएस्ट कॉस्ट ऑप्शन पे आपने जाना है, तो लोअर कॉस्ट ऑप्शन में वो लोअर कॉस्ट इकोनॉमिकली होगी या पॉलिटिकली होगी, ये मैटर करता है एक स्टेट के लिए। या अगर आप बेनिफिट्स को देख रहे हो तो आप इकोनॉमिक बेनिफिट को देख रहे हो या पॉलिटिकल बेनिफिट को देख रहे हो। ठीक है, तो रैशनल एक्टर मॉडल कंफ्यूजिंग है क्योंकि इतना आसान नहीं होता डिसीजन करना, या जब आप लोएस्ट कॉस्ट या हाईएस्ट बेनिफिट कह रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक 2+2=4। ठीक है, स्टेट्स रिलेशन और स्टेट फॉरेन पॉलिसी is not like math calculation जिसमें 2+2 और हायर कॉस्ट बड़े आराम से, लोएस्ट कॉस्ट आराम से निकल है या हाईएस्ट कॉस्ट हाईएस्ट बेनिफिट आराम से निकल है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल रिलेशंस। सोशल रिलेशन में लोएस्ट कॉस्ट और हाईएस्ट बेनिफिट्स को यू कांट एवरी टाइम मेजर देम इन ए इकोनॉमिक टर्म। ठीक है, समटाइम हमें पॉलिटिकल साइड पे भी देखना होता है उस चीज की। तो रैशनल एक्टर मॉडल कंफ्यूजिंग है क्योंकि आसान नहीं है हाईएस्ट बेनिफिट को डिफाइन करना और आसान नहीं है लोएस्ट कॉस्ट को डिफाइन करना। तो ये हमारा पहला मॉडल था, रैशनल एक्टर मॉडल। उसके बाद जो हमारा दूसरा मॉडल है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल। Organizational process model, foreign policy maker respond based on the standard operating procedure. Most of the time states they practice reciprocity. Reciprocity mean organizational process model. जैसे अगर एक स्टेट है, जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे उनको लोअर डाउन किया, हमने उनके एम्बेसडर से कहा कि वो जोन सा है वो चले जाएं, वो चले गए, तो इंडिया ने हमारे जो एम्बेसडर था उसको वापस भेज दिया। अब पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन जो एम्बेसी है उसको उनका डिप्टी एम्बेसडर रन कर रहा है, और पाकिस्तान की जो एम्बेसी इंडिया में उनको वहां पे डिप्टी एम्बेसडर या डिप्टी हाई कमिश्नर जोन सा है उन चीजों को देख रहा है। तो रेसिप्रोसिटी जिसमें आप एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो, तो ये एसओपीज हैं। ठीक है, आप कुछ एसओपीज डिफाइन कर लेते हैं कि इस कंट्री के साथ हमारी रेसिप्रोसिटी होगी, इस कंट्री के साथ हमने ये एसओपी साइन करना है, सॉरी ये एसओपी फॉलो करना है। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो मतलब उन एसओपीज के ऊपर चल रही है तो इसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल के अंदर इश्यू क्या है सबसे बड़ा?
जैसे जब मैंने फॉरेन पॉलिसी की शुरू में बात की थी तो मैंने कहा था कि फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव 3 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक चीज शॉर्ट टर्म में उसके बारे में एसओपी कुछ कह रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ और कह रहा होता है। ठीक है, एक चीज जो शॉर्ट टर्म में आपके लिए शायद हार्मफुल हो सकती है या आपको उसकी कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, बट इन ए लॉन्गर रन वो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकती है। तो इस तरह के अंदर जो जब हम ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट, मिडल या लॉन्ग टर्म के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल है ये काम नहीं करता। इसमें आपके जो डिफाइंड एसओपीज हैं वो काम नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो इसलिए ये एक ड्रॉबैक है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल का। अब तीसरा जो मॉडल है जो फॉरेन पॉलिसी का, उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। ठीक है, या गवर्नमेंट बार्गेनिंग। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल क्या होता है? We believe कि government is basically bunch of different bureaucracies or agencies. जैसे एक गवर्नमेंट के अंदर उनका इंटीरियर डिपार्टमेंट होता है, इंटीरियर डिपार्टमेंट के अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अलावा फाइनेंस को देखने के लिए इकोनॉमिक मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, हेल्थ मिनिस्ट्री होती है। तो गवर्नमेंट में क्या होता है कि डिफरेंट हमारे पास मिनिस्ट्रीज होती हैं। जब फॉरेन पॉलिसी को शेप करना होता है तो उन मिनिस्ट्रीज के जो ऑफिशियल्स हैं वो इकट्ठे बैठते हैं और उनमें बार्गेन होती है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री एक इशू पे कह सकती है कि ये हमारे लिए इस इशू को कैरी करना ठीक नहीं है, या किसी इशू या किसी चीज के ऊपर डिफेंस मिनिस्ट्री ऑब्जेक्ट कर सकती है कि जैसे हमने डिफेंस मिनिस्ट्री कह सकती है कि हमने रशिया से हम प्लान कर रहे हैं कि हम Su-35 परचेज करें, इसलिए हम रशिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते इस इशू में। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक मिनिस्ट्री कह सकती है कि हमने आईएमएफ से पैसे लेना है, तो इस इशू पे हमें रशिया के खिलाफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वरना आईएमएफ हमारी सपोर्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली जब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लोग बैठ के एक टेबल के ऊपर एक डिसीजन बना रहे होते हैं, तो उनमें बार्गेन हो रहा होता है, गिव एंड टेक हो रहा होता है, और वो गिव एंड टेक के नतीजे में हमारे पास एक डिसीजन सामने आता है। तो अगर किसी मुल्क में डिसीजन मेकिंग ऐसी हो रही है, गिव एंड टेक और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में बार्गेनिंग की बेस पर हो रही है, तो इसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। अब ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के साथ सबसे बड़ा इश्यू ये है कि बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को ब्यूरोक्रेट्स जो सेक्रेटरीज होते हैं वो रन कर रहे होते हैं, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके जो इंटरेस्ट होता है या उनका जो वे ऑफ थिंकिंग होता है वो डिफरेंट होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेट्स के डिसीजन हो वो पॉलिटिशियन के लिए कन्विंसिंग हो। ठीक है, तो कई दफा ब्यूरोक्रेटिक कोई डिसीजन लेते हैं लेकिन उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। ठीक है, तो इसमें ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में जो हमारे पास पॉलिटिकल हायरार्की है और जो ब्यूरोक्रेसी है, इनके अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं उनको सॉर्ट आउट करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो ये ड्रॉबैक था ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के साथ। तीसरा जो हमारे पास फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग मॉडल है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिसीजन मेकर। अगर हम इराक वॉर केस में देखें, जब प्रेसिडेंट बुश वहां पे था, तो इराक वॉर जो सा था वो प्रेसिडेंट बुश का जो इंडिविजुअल डिसीजन ज्यादा था। तो इस तरह के मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी कंट्री के अंदर जो रिजीम्स हैं वो डिक्टेटोरियल है या अथॉरिटेटिव है, जैसे सदाम हुसैन के जमाने में इराक था, या इस तरह के मुशर्रफ के टाइम में या जनरल ज़ाउला के टाइम में जब पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप थी, तो इस तरह के अभी रिसेंटली एक बुक आई थी, जनरल अजीज की जो बुक थी, उसमें जनरल अजीज ने लिखा कि मुशर्रफ डिसीजन मेकिंग में इवन अपनी कैबिनेट और किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लेता था, और जनरल अजीज का बड़ा रोल था मुशर्रफ को प्रेसिडेंट बनवाने में। तो जनरल अजीज का ये कहना है तो इसमीन के पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ टाइम में या मार्शल टाइम में जो डिसीजन मेकिंग थी वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग थी। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग रैपिड होती है, ठीक है, और आसान होती है, लेकिन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के साथ 3 बड़े इश्यूज हैं। अगर वहां पे
कोई कोई शख्स किसी स्टेट में इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि individuals generally they suffer from misconception and selective perception. Misconception mean जैसे एक शख्स है, उसके माइंड में शुरू से है कि ज्यूज जो उनसे हैं बेसिकली दे आर सेंटर ऑफ इवल. अब इस तरह की मे बी दे कैन बी सेंटर ऑफ इवल, लेकिन इस तरह की कोई मिस, जैसे मोदी है, मोदी मतलब फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही इज अगेंस्ट मुस्लिम्स, तो उसकी जो वो चाइल्डहुड कंसेप्शन है या उसकी जो सिलेक्टिव परसेप्शन है, जब वो डिसीजन लेवल इंडिविजुअली डिसीजन लेगा तो उसकी वो मिसकंसेप्शन और सिलेक्टिव परसेप्शन उसकी डिसीजन मेकिंग के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी. तो ये सबसे बड़ा इशू है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के साथ. और दूसरा बड़ा इशू जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के साथ है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव बायस. इफेक्टिव बायस मीन के समटाइम्स आप यू फ्लो विद इमोशंस. जैसे मैं गुस्से में बैठा हूँ, अब मैं गुस्से में बैठा हूँ, मैंने गुस्से में बैठ के एक फैसला कर लिया. उस वक्त मेरे इमोशंस और थे, और जब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो मेरे इमोशन और थे. मुझे ऐसे लगा कि जो मैंने फैसला गुस्से में किया वो गलत था. तो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के साथ ये दूसरा बड़ा इशू हो सकता है जिसको हम इफेक्टिव बायस कहते हैं. और मतलब ये कुछ इश्यूज हैं जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के साथ हो सकते हैं. अच्छा, the primary purpose of for making for foreign policy is to protect the national interest. But let's see that how we explain national interest. Yeah, what is national interest? National interest को हम कैसे easily define कर सकते हैं? National interest, basically this word is derived from the French expression that is raison d'etat. Raison d'etat. It's mean reason of a state. कि स्टेट की जो रीजन है वो क्या है, और वो जो स्टेट की रीजन होती है उसको हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट इज द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट. द प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट स्टेट का क्या है? सर्वाइवल. उसके बाद स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी. ठीक है. और फिर हमारे पास जो बाकी जो इंटरेस्ट हैं वो आते हैं. तो हम नेशनल इंटरेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं 5 डिफरेंट कैटेगरीज में. इनमें सबसे पहले जो नेशनल इंटरेस्ट की कैटेगरी है उसको हम कह देते हैं प्राइमरी इंटरेस्ट. किसी भी स्टेट के प्राइमरी इंटरेस्ट क्या होते हैं या प्राइमरी इंटरेस्ट क्या हो सकता है. ठीक है. ऑब्वियसली एक चीज तो मैंने आपको पहले बताई, सर्वाइवल. लेकिन सर्वाइवल बहुत जनरल है. मतलब सर्वाइवल को मतलब इट्स क्वाइट जनरल. आप इसको जब तक प्राइमरी और सेकेंडरी इंटरेस्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आप सर्वाइवल को भी डिफाइन नहीं कर सकेंगे. तो किसी स्टेट का सर्वाइवल कैसे इंश्योर हो सकता है, या उस स्टेट का जो प्राइमरी इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? देयर फिजिकल इंटीग्रेशन, देयर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. ठीक है, कि एक स्टेट जो सा है वो इकट्ठी रहे. देयर फिजिकल और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ये किसी स्टेट का प्राइमरी इंटरेस्ट होता है, इसको इंश्योर करना. ठीक है. उसके बाद उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है वो भी आ जाती है किसी हद तक. लेकिन टेरिटोरियल और फिजिकल इंटेग्रिटी ये किसी स्टेट की सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. तो फिजिकल और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इसको हम स्टेट का प्राइमरी इंटरेस्ट कह लेंगे. जो स्टेट के प्राइमरी इंटरेस्ट के बाद दूसरे इंटरेस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी इंटरेस्ट. एक स्टेट का एज फार एज फॉर अच्छा currently I'm talking about interest in terms of foreign policy context. ठीक है. तो फॉरेन पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट में किसी स्टेट का जो सेकेंडरी इंटरेस्ट है वो क्या होगा? प्रोटेक्शन ऑफ देयर डायस्पोरा लिविंग अब्रॉड. कि उन शहरियों, उस मुल्क के जो लोग दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करना. उनको अगर कोई इम्यूनिटी है या उनको वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, तो वो सब कुछ करना. तो ये उस स्टेट का क्या हो जाएगा? सेकेंडरी इंटरेस्ट. कि अपने लोगों को जो मुल्क से बाहर ट्रेवल करना चाहते हैं या ट्रेवल कर रहे हैं या मुल्क से बाहर सेटल्ड हैं उनको वहां फैसिलिटेट करना.
और तीसरा जो टाइप्स है इंटरेस्ट की उसको हम कहते हैं जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट क्या है? जैसे शोज एडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ, ट्रेड डिप्लोमेसी को इंश्योर करना, इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे रखना, ठीक है। तो ये किसी स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी के जनरल इंटरेस्ट होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है वेरिएबल इंटरेस्ट। इट्स कीप ऑन चेंजिंग, इट मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका कोई सेकेंडरी इंटरेस्ट जो सा होता है वो आपका प्राइमरी इंटरेस्ट भी बन जाता है, ठीक है, स्पेशल सिनारियोज में। तो वो इंटरेस्ट जो कि अपनी पोजीशन चेंज करते रहे, ठीक है, उसको हम वेरिएबल इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक टाइम था कि जो 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 जिहाद के नाम के ऊपर हमने मिलिटेंसी की, ठीक है, इट वाज नीड ऑफ दैट टाइम 1980s, ठीक है। हमने सारे मुजाहिदीन ट्रेन किए, और जो 2009-11 के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डायनामिक्स हैं वो डिफरेंट है। तो इसमें वी कांट अफोर्ड कि हम वो पॉलिसीज जो हमने 80s में एग्जीक्यूट की थी उनको अब कैरी ऑन करें। तो कुछ टाइम्स होते हैं वो आपके टाइम पीरियड के साथ होते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, तो इसको हम वेरिएबल इंटरेस्ट कहते हैं। फिर आ जाते हैं कुछ परमानेंट इंटरेस्ट, ठीक है। उमूमन जो आपके प्राइमरी इंटरेस्ट होते हैं वो आपके परमानेंट ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप जौन से हैं वो, जैसे कश्मीर है, ठीक है, we take Kashmir as our permanent interest, ठीक है। In addition to ensure our territorial integrity, Kashmir is another permanent feature of our foreign policy. तो इस तरह के कुछ इश्यूज होते हैं जो परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट को हम 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं: प्राइमरी इंटरेस्ट, सेकेंडरी इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट, वेरिएबल इंटरेस्ट एंड परमानेंट इंटरेस्ट। और फॉरेन पॉलिसी का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो जो आपके किसी स्टेट का जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड ये आज का लेक्चर था। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द मोमेंट। सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज।